Hello, students. The topic for today's discussion, as you can see on your screen, it's The Call of the Soil, written by Venkat Iyer. Now, before we begin with the topic, let us acquaint ourselves with the writer. As you can see on the screen, children, he was born in 1966. Naam unka tha Venkateshwaran Iyer. In short, we also call him as Venkat. Study wise, children, he was a science graduate. और करियर की बात करोगे तो he was a certified project management professional. Which look IBM, which is one of the topmost companies in IT sector. So he has worked as a project manager for software implementation. अच्छा IT sector में children after working almost for 17 long years 2004 में वेंकट अय्यर ने he quit the IT industry and he has devoted himself for organic farming. उन्होंने खुद को बच्चों लोग झोंक दिया है किसकी तरफ ऑर्गेनिक फार्म दैट इज दिस स्मॉल विलेज चिल्ड्रन इन डहानू पेट विलेज नाम है उसका इट फॉल्स इन डहानू तालुका एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र द पीपल ऑफ मुंबई आर क्वाइट अवेयर ऑफ दैट प्लेस ठीक है अच्छा उन्होंने एक बुक भी लिखा है बुक का नाम है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स ये एक वर्ड्स या फिर ये फ्रेज आपको बताएगा बच्चों उनके करियर का जो डिसीजन था माइक्रोचिप्स में काम करते करते माइक्रोचिप्स आर बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स यू कैन से और फिर उन्होंने क्या उगाना चालू किया था मूंग सो दैट बेसिकली ट्राइज टू ट्रेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम अ टेकी ही वाज अ टेक्नीशियन वी कैन से बट नाउ ही हैज बिकम अ फार्मर तो ओवर पीरियड ऑफ 15 to 17 years Acha, if you ask him about this career change, so he says that it was not a career change, but it was a change of a lifestyle को change किया था उन्होंने. And simple example like he was supposed to take this decision to shift the quieter environs of a village. मतलब कि उन्होंने ये सब crowded city से कुछ अलग experience लेने के लिए he wanted to move on to the villages where the environments are quite quiet we can say. अच्छा now why did he insist on practicing organic farming मतलब उनका चॉइस बच्चों ऑर्गेनिक फार्म ही क्यों था अच्छा फ्रॉम द आउटसेट मतलब शुरुआत से अगर देखोगे तो उनका एक ही अट्रैक्शन था एंड दैट वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा many challenges he has faced in this pursuit but today not only does he deliver lectures on organic farming but also join hands with organic farmers and the NGOs, that is non-governmental organizations working in the organic field to propagate organic farming. Achha, ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. Very catchy sentence, children. You try to ensure that you don't ravage the land while you're trying to live out of agriculture. मतलब खेती में से अपना गुजारा करते वक्त आपको इतना ख्याल रखना है कि आप नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे आप एग्रीकल्चर के जरिए बच्चों लोग मतलब यू विल टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट दैट्स व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू preach out to the people as we can say okay now the call of the soil children as you can see the lesson तो इसमें पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ है it is actually talking about the first crop अच्छा what first crop did they actually come across and they started farming out of it we can say okay let's have a look children April 2004 की बात थी what is the timing April 2004 he was standing in the middle of a lush green field of moong अच्छा moong mostly like for example children will aware in English we refer to it as green gram and he just looked around me मतलब वो एक एकदम हरे भरे खेत के बीचों बीच खड़े हैं जहां पे उन्होंने क्या उगाया हुआ है ग्रीन ग्राम मूंग बोलते उसको एंड ही जस्ट लुक्ड अराउंड हिम इट वाज जस्ट बिफोर द सनराइज एंड द स्काई वाज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज वक्त कौन सा था बच्चों लोग अर्ली मॉर्निंग अच्छा सन का कलर कौन सा था ब्राइट ऑरेंज कलर का था नाउ द ग्राउंड वाज डैम्प मतलब बच्चों लोग मिट्टी में नमी थी बच्चों लोग पानी था एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू सब पत्तों के ऊपर बच्चों लोग ड्यू ड्रॉप से ओस की बूंदे थी अच्छा नाउ नॉट टू क्वेश्चन चिल्ड्रन दैट ही वाज barefoot farmers generally they don't wear chappals na yes and almost like his feet was totally muddy as I walked
around gingerly inspecting the plants. तो gingerly means children very carefully, cautiously, ध्यान रखें कि आपका पैर कहीं पे किसी पौधे के ऊपर ना गिर जाए, उससे उसको नुकसान होगा। तो आप वो संभल के चल रहे थे और सब प्लांट्स को इंस्पेक्ट कर रहे थे। सो बच्चों उन्होंने अपने खेत का एक मस्त इमेज क्रिएट किया ना। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जब सन शाइन कर रहा है, ब्राइट ऑरेंज बन रहा है। अच्छा, नीचे का जमीन पूरा बच्चों भीगा हुआ था। अच्छा, पौधों के ऊपर क्या ओस की बूंदे गिरी हुई थी। इसके पैर अगर आप देखोगे तो ही वॉज बैरफुट, मिट्टी से भरे हुए थे पैर, धीरे धीरे संभल के चल रहे थे वो। और टाइम क्या था बच्चों लोग? अप्रैल 2004। और अपने ग्रीन ग्राम यानी मूंग के खेतों के बीचों बीच खड़े थे। अच्छा, now around him या फिर around me there were some rows of chiku trees. उनके आजू बाजू में बच्चों लोग बहुत सारे चिकू ट्रीज थे। बिफोर अ डेंस फॉलेज ऑफ मूंग, फॉलेज मतलब बच्चों लोग बहुत सारे लीव्स को साथ में मिला के बच्चों लोग हम लोग फॉलेज करके बोलते हैं, द लीव्स ऑफ अ प्लांट वी कैन से। तो वहीं पे बच्चों लोग मूंग के खेतों के बीचों बीच उन्होंने चिकू के पेड़ भी उगाए थे। एंड एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। मतलब ये सब नजारा देखने के बाद ही फील्स दैट आई वुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। मतलब ये सब काफी, ही फील्स लकी दैट ही इज एक्चुअली ब्लेस्ड विद दिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वी कैन से। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 feet टॉल, मतलब 2 feet से ज्यादा टॉल तो रहेंगे नहीं। हाँ, लेकिन उनके ऊपर ग्रीन पॉट्स, पॉट्स मतलब जिसके अंदर वो सेइंग बोलते हैं बच्चों, जिसके अंदर ये ग्रेन्स पकड़ते हैं। दे वर हैंगिंग आउट। The pods were not yet ripe, पके हुए नहीं थे, and there was a light fuzz growing on them. अच्छा, now what actually happens, children? Like there was still some time before the harvest, and I felt exhilarated. मतलब अभी भी ये मूंग को फसल निकालने में थोड़ा वक्त था, और ये कैसे फील कर रहे थे बच्चों लोग? Exhilarated. Exhilarated is like, children, something more than happiness, we can say, excitement, ecstasy. It's a feeling of accomplishment कि उन्होंने कुछ करना चाहा था और आज शायद वो उनका ड्रीम पूरा हुआ था बच्चों लोग। ओके, नाउ आई स्टूड वॉचिंग द सन राइज अबाउट द टॉवरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस। अच्छा, तो उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया था बच्चों लोग? सन को राइज होते हुए देखा, ट्रीज के बीचों बीच से उन्होंने देखा है, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है? ही हैज गॉन बैक टू हिज हाउस। उनका घर बच्चों लोग एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर था इन द मिडिल ऑफ हिज ग्रीनरी, एक खेतों के बीचों बीच उन्होंने बच्चों लोग क्या बना के रखा? अपना घर। I could not believe that I was the owner of the land, that I was looking at my first crop. उनको विश्वास नहीं हो रहा था बच्चों लोग कि ये उस जमीन के ओनर थे और वो अपने पहली फसल की देखरेख कर रहे थे, फिर पहली फसल को ऑब्जर्व कर रहे थे। चिल्ड्रन, इट वाज लाइक looking a child grow, we can say, na, whom you have given birth. And he was from a technician, children, from a techie, he has turned out to be a farmer. अच्छा, ना सपोज लाइक थोड़ा सा एक हिस्ट्री देखते के लिए कि जमीन का टुकड़ा उन्होंने कैसे ऑब्टेन किया था। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, ओके, उन्होंने जमीन के लिए जो एडवांस पैसा दिया था, आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फेमिलियर विथ फार्मिंग। खेती का बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं था तो थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहते थे। बट मोरू दादा जो एक्चुअली एक ब्रोकर थे, एक एजेंट थे, जिन्होंने जमीन का टुकड़ा उनको दिलवाया था, उनके पास कुछ अलग आइडियाज था। अच्छा, उसने ही वॉज वेरी कीन मीन्स इंटरेस्टेड, वी कैन से, दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, मतलब फटाक से वहां पे मूंग उगाने का आइडिया दिया था उन्होंने। बट एज यू नो चिल्ड्रन दैट वेंकट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और वो अभी भी बच्चों लोग कुछ बुक्स रीड कर रहे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड ही जस्ट वांटेड टू फिगर आउट, फाइंड आउट व्हाट ही कुड सो देयर एंड हाउ शुड वी गो अबाउट। अच्छा, लेकिन मोरू दादा बच्चों लोग बहुत ज्यादा फर्म था, उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या उगाएंगे? मूंग उगाते हैं। ही सेड द सीजन वाज राइट फॉर सोइंग मूंग, मतलब सीजन अच्छा था, एंड द बेस्ट सीड्स वर अवेलेबल इन सूरत, द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात के बाजू में बच्चों लोग जो सूरत है वहां पे अच्छे सीड्स मिलेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या उगाते हैं? मूंग, और ये अच्छा सीजन है। दैट मीन्स ही वाज क्वाइट फर्म विद द डिसीजन कि लाइक वो अपने डिसीजन बदलना नहीं चाहता था। कौन? मोरू दादा। लेट्स सी कि लाइक वेंकट अय्यर इफ ही एग्रीज टू द आइडिया दैट इज गिवन बाय मोरू दादा। आई मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत एंड बॉट अराउंड 10 kilograms ऑफ मूंग। ठीक है, इसका मतलब बच्चों लोग राइटर कहां पे चला गया था? सूरत, ओके, और वहां से क्या लेके आ गया? 10 kilograms ऑफ मूंग।
अच्छा, मोरू दादा रेंटेड इज ट्रैक्टर। मोरू दादा के पास उसका ट्रैक्टर था जो उसने उसको भाड़े पे दिया था, तो उन्होंने पूरा का पूरा लैंड विच लोग प्लाउ किया था, ओके, हल चला के, एंड दे क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस। तो पूरे के पूरे खेत में उन्होंने मूंग उगा दिया था। A few days later, children, मतलब कुछ दिनों के बाद, they were overjoyed to see tiny green leaves। चलो खेत में जब उन्होंने वो हरे हरे लीव्स बाहर निकलते हुए देखा, तो आप इमेजिन करना, they were overjoyed। They had never seen moong growing before and they were thrilled at the sight। बच्चों ये नजारा उनको इतना खुशी देके गया था कि you couldn't even imagine, we can say। It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Ville Parle, Mumbai। तो बच्चों when he was young, when he was staying with his parents, कहाँ पे रहते थे वो मुंबई में चिल्ड्रन? विले पार्ले। नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट दैट। वहां पे बच्चों आपको पार्ले जी का कंपनी आपने देखा है पुराना वाला, वहां पे रेलवे क्वार्टर्स है। तो वहां पे उन्होंने पहली बार क्या उगाया था? हिबिस्कस का प्लांट उगाया था चिल्ड्रन। और हिबिस्कस को उगते हुए, हॉर्सशू करके बोलते हैं उसको, यस, तो उसको उगते हुए देखने के बाद उसको जो एक्साइटमेंट फील हुआ था ना बच्चों लोग, जो थ्रिल फील हुआ था, वो उसको कंपेयर करते द सेम अमाउंट ऑफ थ्रिल दैट ही वाज फीलिंग व्हेन ही सॉ दैट ग्रीन लीव्स ऑफ मूंग, दोस टाइनी लीव्स कमिंग आउट। ठीक है, नाउ ही वाज फीलिंग ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस। उसको लगा अच्छा हुआ मैंने मोरू की बात मान ली थी, और क्या हो गया मैंने यहाँ पे? मूंग। नहीं तो शायद ये नजारा वो मिस करते थे। The next thing Moru Dada wanted to do was spray some pesticides on the plants। अभी चलो मोरू दादा तो उसके एडवाइजर का काम कर रहा है, तो मोरू दादा ने उसको बोला था कि चलो अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स मारते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब चलो पेस्ट आते, कीड़े मकोड़े आते हैं, ओके, कुछ पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए। और उसने ये भी बताया था कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये हमको क्या देगा? हायर यील्ड। यील्ड ये वर्ड का मतलब होता है चलो प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। Now, if you think about Venkat Iyer, this was something we did not want to do। कोई एक ऐसी बात थी जो हम लोग नहीं करना चाहते थे। क्या? Pesticides मारना। And they were very clear, children। Moru Dada was very sorry, Venkat Iyer very clear not to use any chemicals। मतलब कोई केमिकल्स यूज करने की तो बात ही नहीं आती थी, और वो मोरू दादा को एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा, ना सपोज, लेकिन मोरू दादा को जब बताया उसने कि लाइक हम लोग इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, तो मोरू दादा ने तो जैसे रिएक्ट किया था ना चलो, ऐसे लग रहा था कि हमने उसको कोई हाराकीरी सजेस्ट किया रहेगा। मतलब जैसे किसी के स्टमक के अंदर सोट डाल के उसको काट दिया जाता है ना चलो, उसको हाराकीरी बोलते हैं। मतलब इट वाज समथिंग वेरी बिग सरप्राइज फॉर हिम। वो इमेजिन नहीं करा था कि लाइक हम लोग मूंग उगा रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग पेस्टिसाइड्स नहीं मारेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे तो मूंग वहां पे आपको दिखने वाले नहीं, कुछ प्रोडक्शन नहीं आएगा। अभी मोरू दादा को चलो कन्विंस करने के लिए वेंकट आयर को बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस। He just ensured to them, and Moru Dada and his friends, that he should not use any chemicals on the farm। They refused to understand how crops would grow without sprays। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि लाइक ये पौधे, मतलब ये जो प्लांट्स है, ये क्रॉप्स है, बिना स्प्रे मारे हुए कैसे उग सकते हैं, उसको वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी बच्चों लोग, उन्होंने हमेशा से देखा था कि जब भी वो लोग खेती करते थे तो ऑटोमेटिकली स्प्रेज को तो लोग यूज कर ही लेते थे। नाउ contrary to what everybody else said। क्या बोला? contrary to what everyone else had told us। contrary means children against। nature did her job। सब लोगों ने बोला था देखो अगर तुम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करोगे एक मतलब क्रॉप भी नहीं आने वाला यहाँ पे तुमको। लेकिन नेचर ने अपना काम कर दिया था, और नेचर को अपना काम करने के लिए कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं थी। they did not need to bribe the nature to get the work done। so harvest का टाइम था बच्चों लोग, and they managed to get a respectable 300 kilograms of moong from the field। कितना लाया था बच्चों लोग? सूरत से 10 किलो। कितना प्रोडक्शन आया? 300 किलो। नॉट बैड ना? an awful lot of moong and with a lot of confidence। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था ना। now certain the land was fertile।
जमीन बच्चों लोग वहां पे जो थी फर्टाइल थी, इट वाज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स। अगर ये क्रॉप्स नहीं आते तो शायद वेंकट अय्यर को एक डाउट आता था कि बिना स्प्रेस के, बिना पेस्टिसाइड्स के शायद खेती करना नामुमकिन होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रायल किया था, मूंग उगाए थे 10 किलो और बिना पेस्टिसाइड्स यूज किए हुए 300 किलो का प्रोडक्शन आया था। एंड दैट वाज मतलब लाइक फॉर एग्जांपल रीजनेबली रिस्पेक्टेबल वी कैन से, एंड इट वाज अ मेजर मोरल बूस्टर। मोरल बूस्टर मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्फिडेंस बिल्डर वी कैन से। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि अरे अगर मूंग आ सकते हैं बिना पेस्टिसाइड्स के, तो बाकी का खेती भी हो सकता है बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना केमिकल्स के। और शायद उनका मेन एम ही वही था बच्चों, ही वांटेड टू गो फॉर व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। अच्छा, नाउ कमिंग आउट फ्रॉम दैट चिल्ड्रन, now we are moving towards another concept or another episode of this same story that we are having children, जिसको उन्होंने टाइटल दिया यहाँ पे द सेंट ऑफ राइस। अच्छा, पहले साल क्या हुआ बच्चों लोग, ऑलमोस्ट लाइक उनको थोड़ा लेट हो गया था फॉर द राइस सोइंग सीजन एंड हैड टू रिजॉर्ट टू ग्रोइंग द GR4। एक चावल का अलग अलग वैरायटीज आते हैं, उसमें से GR4 करके एक वैरायटी उन्होंने लाया था और उसको उगाया। अच्छा, अभी हुआ क्या देखो, it was short term and recommended by the agricultural officers of Kasbad। मतलब उस साल तो उन्होंने क्या उगाया था बच्चों लोग, वो GR4 का वैरायटी ही उगाया था। और वहां पे कसबड़ बच्चों लोग करके जो वहां पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उन्होंने उनको रिकमेंड किया था कि GR4 का वैरायटी उगाना करके। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, दैट वी वुड स्टार्ट अर्ली। अभी तो टाइम था तो लोग जल्दी शुरुआत कर सकते थे। Now they wanted to find some good traditional variety of rice to grow। कुछ अच्छा वैरायटी चाहिए था उनको, एकदम ट्रेडिशनल बच्चों, पुराना अपना ओरिजिनल इंडिया का, without any hybrids we can say। Now we had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers। अपने जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल चावल होते थे बच्चों, उसके लिए ज्यादा आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा केमिकल्स भी नहीं लगते। अच्छा, these varieties were very strong and they resisted pests। मतलब ये बच्चों, ये जो बीज आते हैं, सीड्स होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि वो पेस्ट को खुद ही रेसिस्ट करते, तो आपको केमिकल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, we were sure that it was this type of rice that would grow well in a farm where we did not use any chemicals at all। तो उनको पता था कि उनके फार्म पे, उनके खेत में ऐसा ही कोई एक वैरायटी उनको जरूरत थी जहां पे वो क्या यूज नहीं करने वाले थे, केमिकल्स। अच्छा, प्रीवियस ईयर का उनका जो एक्सपीरियंस था और उसमें उनको क्या मिला था, लो इल्ड हैड टॉट अस लेसन एंड वी वर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड्स दिस ईयर। चलो, हाइब्रिड्स आपको पता है साइंटिफिकली जो सीड्स बनाए जाते हैं, दो अलग अलग वैरायटी के सीड्स लेते हैं, उसमें से हम लोग कोई तीसरा वैरायटी बनाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे नाम क्या देते हैं, वी जनरली रिफर टू देम एज हाइब्रिड्स। लास्ट ईयर उन्होंने हाइब्रिड उगाया था और केमिकल्स यूज नहीं किए थे, लेकिन फिर बहुत लो यील्ड मिला था। इससे एक बात क्लियर हो गई थी कि अगर आप हाइब्रिड्स यूज करोगे तो आपको केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स तो यूज करने पड़ेंगे। सो इनको क्या लगा कि अगर हम लोग किसी ट्रेडिशनल क्रॉप की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, ट्रेडिशनल क्रॉप जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और पेस्ट को खुद ही रेजिस्ट करते हैं, एंड दे आर नॉट हंग्री फॉर फर्टिलाइजर्स, तो शायद उनको फिर अच्छा रिजल्ट मिलने वाला था यहाँ पे। एंड लेट्स सी what these people have shortlisted now। but चलो, अप्रैल 2005 की बात है, अप्रैल 2005 they started looking for a good variety of rice। अप्रैल 2005 क्या चाहिए था उनको, एक अच्छा वैरायटी चाहिए था, किसका, लेकिन ट्रेडिशनल राइस। अच्छा, that was one of our neighbors in the village who was actually a businessman from Mumbai who owned land। उन्होंने उनको एक सजेस्ट किया था एक सर्टेन वैरायटी ऑफ लोकल सेंटेड राइस। सेंटेड मतलब चलो खुशबूदार, जब आप चावल पकाते हो उसका खुशबू निकलता है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच्ड ओवर टू हाइब्रिड्स। पेट का जो गांव था बच्चों, वहां पे ज्यादातर लोगों ने अपने जो पुराने बीज थे उसको बोना बंद करके अभी मार्केट में जो हाइब्रिड्स मिलते थे उनको लाके उनको उगाना चालू किया था। अच्छा, अभी बच्चों गांव में जितने भी यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स था, उनको लगा कि ये आदमी पागल हुआ है, क्रेजी टू आस्क फॉर Desi variety, as they called it। अच्छा, my regular visits to the village around searching for a good traditional variety did not yield any results and we were giving up hope।
तो बच्चों बहुत सारे विलेजेस को उन्होंने विजिट किया था, वहां पे उन्होंने ट्राई किया कि कोई बहुत पुराना ऐसा अपना ओरिजिनल चावल जिसको कोई हाइब्रिड नहीं बनाया गया, ऐसा कोई ट्रेडिशनल वैरायटी जो सेंटेड था, ये ढूंढने की कोशिश की। लेकिन यंगर लोगों को क्या लगता था कि दिस मैन इज गॉन क्रेजी, आज के जमाने में आपको सब पुरानी वैरायटीज नहीं मिलते। हम लोग भी जब छोटे थे बच्चों लोग गांव में देखते थे, लोग क्या करते थे, एक आध पर्टिकुलर चावल उगाने का, ठीक है, अगले साल उसका जो प्रोडक्शन आता है उसमें से थोड़ा वो लोग संभाल के रखते थे, अगले साल वापस से उसको प्लान करने के लिए, और बाकी का कंज्यूम करते। अभी लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, शहर जाने का, वहां से फिर कुछ हाइब्रिड्स खरीद के लाते हैं, उनको उगाया जाता है ताकि अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो इससे क्या हो गया बच्चों, जो अपने पुराने जो ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ राइस थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड यू डू नॉट फाइंड सच वैरायटीज इन द मार्केट नाउ, और यू डोंट इवन फाइंड देम इन द विलेजेस नाउ। I decided to give it one last try, आखिरी कोशिश, and spoke to Baban's father and some other elders. After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. Baban children, one of his colleagues' children who was in the village was helping him, you can say. तो उन्होंने उनको बहुत मेहनत करने के बाद एक नाम सजेस्ट किया था, और वो नाम था बच्चों लोग कासबाई। अभी कासबाई के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज दिस कासबाई, एंड आर दिस पीपल गोइंग टू बाय एनी चांसेस find the seeds of kasbai? So kasbai children is a traditional long grain rice variety which has got distinct aroma, मतलब लंबा वाला आता है बच्चों लोग उसमें वो चावल, अच्छा, और एक डिस्टिंक्ट वैरायटी है और एकदम खुशबूदार है। हाँ, लेकिन उसकी खुशबू बच्चों लोग थोड़ा सा बासमती से थोड़ी माइल्ड रहेगी, बासमती का बच्चों लोग ज्यादा फ्रेग्रेंस निकलता है ना। हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, मतलब बाकी क्रॉप्स के लिए 2-3 महीने लगते हैं, तो 3-4 महीने ले लेगा। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर ग्रोइंग इट ईयर्स अगो, बहुत साल पहले हम लोग ऐसे टाइप का चावल उगाते थे, ऐसे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बता रहे थे। अच्छा, अभी जब उनको पूछा कि इसके सीड्स कहाँ पे मिलेंगे, सो मेजोरिटी ऑफ देम व्हाट दे डिड, दे शुक देयर हेड्स, मतलब दे रिफ्यूज, बोले कि पता नहीं about the seeds and told me that it had disappeared. अभी लोगों ने उसको उगाना ही बंद कर दिया ना, तो गायब हो गए थे, ऐसे बताया गया था। अच्छा, the tales of Kasbai made us more determined to get it. मतलब कसबाई के बारे में बच्चों इन्होंने इतना सुना था कि अभी उनको लग रहा था कि लाइक नहीं, मतलब कुछ भी करके हम लोगों को इसको ढूंढना ही पड़ेगा। एंड वी डिसाइडेड दैट इफ वी डिड नॉट मैनेज टू गेट सम सीड्स, दिस वुड बी अ ग्रेट राइस टू ग्रो। मतलब कैसे भी करके अगर उनको कुछ उसके सीड्स भी अगर मिल गए ना, तो शायद ये बहुत अच्छा चॉइस रहेगा उगाने के लिए। आई थॉट द गवर्नमेंट मे नो समथिंग अबाउट इट, एंड अ विजिट टू द एग्रीकल्चरल ऑफिसर वाज एनलाइटनिंग। मतलब उन्होंने एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को जाके विजिट किया और उनको कसबाई के बारे में पूछा है, और उन्होंने फिर क्या बोला पता है, वो बोले कि अरे मैंने तो ऐसे राइस के वैरायटी के बारे में कभी सुना तक नहीं है। मतलब ही सेड दैट ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी, and he said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. तो उन्होंने उनको क्लियरली बोल दिया था कि गांव के लोग तुमको उल्लू बना रहे, क्योंकि ऐसे कोई नाम का चावल है ही नहीं। तो मतलब बच्चों लोग इनकी पूरी मेहनत यहाँ पे वेस्ट हो रही थी। इट वॉज अ वेस्टफुल एफर्ट्स दैट दे वर पुटिंग। नाउ ही रैटल्ड ऑफ, मतलब क्या होता है बच्चों लोग, लाइक ही टॉक्ड, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, कंटिन्यूसली वो बात करते जा रहे थे, लेकिन कुछ अच्छा इल्स नहीं मिला था। अच्छा, उन्होंने उनको कुछ लेटेस्ट हाइब्रिड्स के बारे में जानकारी दी थी। अच्छा, और उनको तो कुछ फ्री सैंपल्स भी देने के लिए रेड थे कि आप अपने खेत में उगा के ट्राई करना करके। नाउ कर्सिंग माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम विथ हिम, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मतलब अभी उन्होंने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे उन्होंने खुद को कोसा कि फालतू में मैं इस आदमी के पास आया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद किया है, मुझे इसमें से कुछ फायदा तो हुआ नहीं है। तो उन्होंने फिर अपना मुंह मोड़ दिया था बच्चों लोग दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। अच्छा, नाउ चिल्ड्रन, व्हाट एवर वी एनालाइज्ड टुडे, आई टोल्ड यू अबाउट द राइटर, अच्छा, वेंकट अय्यर, और उन्होंने एक बुक लिखा है ना, इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ हिज बुक, व्हाट वाज दैट, माइक्रोचिप से लेकर मूंग की तरफ, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है चिल्ड्रन। अच्छा, 17 साल तक ऑलमोस्ट किसी आईटी कंपनी में, आईबीएम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर का काम करने के बाद सडनली इनको लगा कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, एंड देन ही हैज टर्न टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग काम करने के लिए उन्होंने बच्चों कौन सा प्लेस चूज किया था, पेट, दैट इज इन डहानू डिस्ट्रिक्ट,
इन द लाइक फॉर एग्जाम्पल धानू तालुका पालघर डिस्ट्रिक्ट। वहां पे जाने के बाद मोरू दादा ने उनको जमीन दिलवाई थी। जमीन दिलवाने के बाद अभी वक्त हो चुका था तो क्या उगा सकते थे वहां पे, तो मोरू दादा ने उनको ऑप्शन दिया था मूंग। अच्छा, तो फिर वो कहाँ पे चले गए थे, सूरत, जो गुजरात का एडजेसेंट स्टेट है। वहां से उन्होंने कुछ 10 किलो मूंग लाए थे, उसको उगाया। और फिर वो स्टार्टिंग का जो इमेजरी उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, कैसे अपने मूंग के खेत में खड़े थे और देख रहे थे आजू बाजू में फॉलेज था ना, जैसे फिर वो व्हाइट स्ट्रक्चर का घर। अच्छा, और कितना प्रोडक्शन आया था बच्चों लोग, 300 kg वी कैन से। अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन फिर उन्होंने बच्चों लोग वहां पे क्या यूज करने से इनकार किया था, केमिकल्स और पेस्टिसाइड। गांव के लोगों को कन्विंस करना डिफिकल्ट था, लेकिन सक्सेसफुल थे, कॉन्फिडेंट थे, और उनका फेथ बच्चों लोग प्रूव हुआ था कि बिना केमिकल्स की भी खेती हो सकती है। फिर अगले साल बच्चों लोग उन्होंने किसी एग्रीकल्चरल ऑफिसर के एडवाइस से GR4 का एक वैरायटी यूज किया था चावल का। लेकिन फिर क्योंकि केमिकल्स यूज नहीं किए तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं आया था। तो अभी उनको पता था कि हमको कोई ट्रेडिशनल राइस की जरूरत है जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और पेस्ट को वो खुद ही फाइट करेंगे और ज्यादा फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ वहां पे बहुत ढूंढने के बाद उनको कुछ सीड्स के नाम मिले थे, लेकिन फिर वो सब सीड्स अवेलेबल नहीं थे। और फिर बाद में ही केम थ्रू अ नेम दैट इज कॉल्ड एज कसबाई। कसबाई के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से बात की थी। उन्होंने बोला कि पहले ये सब हम लोग उगाते थे, सेंटेड राइस था, बहुत खुशबूदार था, बासमती से थोड़ा माइल्ड था, लेकिन जब उसके सीड्स अवेलेबल है क्या, ऐसा पूछने के बाद उन्होंने दे शुक देयर हेड्स। अच्छा, फिर वो एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास गया था। उसने बोला कि द विलेजेस आर टेकिंग यू फॉर अ राइड बिकॉज देयर इज नो सीड बाय द नेम ऑफ कसबाई एंड ही केप्ट ऑन रैटलिंग। तो ऑलमोस्ट उसके बाद में फिर वेंकट आयर को लगा कि इस आदमी के पास आके मैंने फालतू में अपना वक्त बर्बाद किया, और फिर वो अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चले गए थे। ठीक है। अच्छा, I'll just divide this topic children in two different lectures, जहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद अल्टीमेटली ये कासबाई के राइस को ढूंढ लिया था। और फिर मैं स्टार्टिंग का आपको कुछ आइस ब्रेकर्स भी बताऊंगा, और फिर कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे चिल्ड्रन जस्ट विल वाइंड अप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय एवरीवन।